Hello viewers, as per the syllabus of class 11th Informatics practices with Python course code 065 that is prescribed by the CBSE, your syllabus is mainly divided into five main categories or units. Here you can see on the screen, units name are given. Actually this year your syllabus is little bit changed from the previous year, and this year you have to study one programming language, that is the Python programming. Like other subjects, the question papers in the subject 2 will be of 100 marks, and out of 100 marks, the 70 marks is reserved for theory and 30 marks is reserved for practical. Okay, the total 100 marks. So here the marks distribution is given. Introduction to computer system, that covers 5 marks. Introduction to Python programming, 25 marks. Data handling using NumPy, it will cover 15 marks. Database concepts and the structured query language. Actually, we have already learned lots of things about database management system in our class 9th and 10th class. It will cover 20 marks. Introduction to emerging trends, it is the last unit and it covers 5 marks. To total 70 marks theory and 30 marks practical. The total will be 100 marks. Okay. Here you can see the unit-wise syllabus. In Unit 1, Introduction to Computer System, these are the course contents. Introduction to Computer and Computing, Evolution of Computing Devices, Components of a Computer System, and their interconnections, input and output devices, computer memories, units of memory, types of memory, primary and secondary memory, data deletion, its recovery, and related security concerns. Okay, so these are the topics of Unit 1, Introduction to Computer System, that we have to cover. And one thing is also left: software, purpose and types, system and application software, generic and specific purpose software. Okay, so these are the course contents of your Unit 1, Introduction to Computer. Introduction to computer system. Okay. The next unit is Introduction to Python. So in this chapter, we shall learn various basic concepts of Python programming. Okay. In Unit 3, we shall learn the Python's data structure, NumPy data structure, data handling part 1. In Unit 4, we shall learn the basic concepts of database management system and structured query language. In Unit 5, Introduction to Emerging Trends, this is the unit name. In this unit, we shall learn these topics: artificial intelligence, machine learning, natural language processing, immersive experience, AR/VR, robotics, big data and its characteristics, Internet of Things, sensors, smart cities, cloud computing and cloud services, grid computing, and blockchain technology. Okay, so these are the course contents of Unit 5, Introduction to Emerging Trends. Okay, now let's come to our first unit of first chapter, Introduction to Computer System. Introduction to Computer System. देखो, कंप्यूटर के जो है बहुत सारे हम लोग डिफिनीशंस बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं. कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन that take some input from the user and after processing it will generate some output, okay, or in information, and these informations can be viewed in both visual form on the monitor screen and on paper, that is the hard copy via printer. तो ये आपकी जो है वो बेसिक डेफिनेशन है कंप्यूटर की. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूजर से कुछ डेटा लेता है और उसको प्रोसेस करने के बाद कुछ आपका इंफॉर्मेशन या कुछ आपका आउटपुट जनरेट करता है. ठीक है, तो देखो कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर को हम कंप्यूटर सिस्टम भी बोलते हैं. कंप्यूटर सिस्टम इसको इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि साथ में मिल करके काम करते हैं. ठीक है, अब इसमें देखो कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं. अब इसमें देखो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं, आपको क्वालिटी पता भी है, जैसे इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं. ठीक है, बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस उससे अटैच्ड होते हैं. आपका जो उसका जो मदरबोर्ड है, जो प्रोसेसर है, इसमें बहुत सारे मेमोरीज है, उसमें लगी मेमोरी होती है डेटा को स्टोर करने के लिए. तो एक्चुअली क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है एक तरह का ये एक सिस्टम है, जैसे आपका म्यूजिक सिस्टम होता है, आपका इकोसिस्टम है, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर, जिसमें बहुत सारे ये जो एलिमेंट्स हैं या इसके जो आपका लो यूनिट्स हैं या इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से. ठीक है, और वो क्या होता है, वो साथ में मिल करके वो काम करते हैं और एक जो है वो कुछ आपका स्पेसिफिक आउटपुट या जो स्पेसिफिक जो रिजल्ट है उसको वो जनरेट करते हैं.
ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम, इन a computer system lots of components or units or elements are attached, ठीक है, and they work together and they generate some output or some meaningful information. अब यहाँ पे देखो डेटा और इंफॉर्मेशंस दिया हुआ है। देखो डेटा क्या होता है, डेटा आपका कोई भी ऐसा एंटिटी आपका हो सकता है जिसकी कुछ मीनिंग हो। डेटा कैन बी ट्रीटेड एज एनीथिंग दैट हैव सम मीनिंग, ओके। अब जैसे आपका नाम डेटा हो सकता है, आपका फोन नंबर डेटा हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो डेटा हो सकता है, आपका एज है, आपका मार्क्स है, फादर्स नेम है, मदर नेम। तो डेटा आपका देखो कंप्यूटर में हम डेटा कुछ भी हम मान सकते हैं, ठीक है। वे सभी एंटिटीज जिनकी कुछ स्पेशल मीनिंग निकलती हो, जिनकी कुछ मीनिंग निकलती हो, उनको हम डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो डेटा को आपका रॉ फैक्ट्स भी हम बोलते हैं डेटा को। तो जब ये डेटा कंप्यूटर में जाता है तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करने के बाद, ठीक है, वो कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को या कुछ आउटपुट को जनरेट करता है। तो वो जो आउटपुट आपका होता है या जो इंफॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस्ड डेटा। प्रोसेस्ड डेटा या उसको रिजल्ट भी कहा जाता है, उसको इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन क्या होता है एक्चुअली, इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड डेटा होता है, ठीक है। वो डेटा जिसकी प्रोसेसिंग हो चुकी होती है उसी को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन या आउटपुट, ठीक है। अब देखो ये कंप्यूटर्स जो होते हैं इनकी बहुत सारी रेंज होती है। आप लोग अलग अलग तरीके के कंप्यूटर्स यूज करते हैं, जैसे हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं, डेस्कटॉप है, स्मार्टफोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम लोग बहुत सारे यूज करते हैं। तो ये सारे जो हैं वो सभी क्या हो सकते हैं, ये सभी अलग अलग आपके कंप्यूटर्स के ही टाइप हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिर्फ वही नहीं होगा कि जो हम घरों में जो कंप्यूटर आपका जो डेस्कटॉप है या जो लैपटॉप है सिर्फ वही आपका कंप्यूटर नहीं है। आप जो स्मार्टफोन यूज करते हैं वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, ठीक है। इसके बहुत सारे रेंज हो सकते हैं, आपका मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, इसका बहुत सारा रेंज होता है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर क्या है, एक तरह का ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो कि यूजर से डेटा को एक्सेप्ट करता है, यूजर से डेटा लेता है और उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद यूजर को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या जो प्रोसेस डेटा है, ठीक है, या जो रिजल्ट है उसको विजुअल फॉर्म में मॉनिटर स्क्रीन पे या फिर प्रिंटेड फॉर्म में, हार्ड कॉपी के फॉर्म में प्रिंटर के द्वारा वो हमको यूजर को प्रोवाइड करता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये फंक्शनलिटीज कुछ कंप्यूटर्स की दी हुई हैं। यदि डिजिटल कंप्यूटर परफॉर्म 5 फंक्शंस इन ग्रॉस टर्म, कोई भी डिजिटल कंप्यूटर है इसमें ये 5 जो मेन वर्क है इसका, ये सभी में आपका होता है। पहला क्या करेगा, ये टेक्स्ट डेटा एज इनपुट, डेटा लेगा यूजर से इनपुट के फॉर्म में, उस डेटा को या वो जो इंस्ट्रक्शंस है उसको कहीं स्टोर करेगा, उसके लिए हमको मेमोरी चाहिए। और तीसरा क्या है इसका, प्रोसेस दो स्टोर डेटा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट जनरेट करेगा। और ये जो जितने भी प्रोसेस हैं ऊपर दिए हुए हैं इन सभी को वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो जितने भी कंप्यूटर हैं, ठीक है, उन सभी कंप्यूटर्स में ये जो फंक्शनलिटीज दी हुई है डिजिटल कंप्यूटर्स में वो इसमें ये होती है। अब आप लोग यहाँ पे देखो, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि डिजिटल डिवाइसेस और एनालॉग डिवाइसेस। अब देखो कंप्यूटर को डिजिटल डिवाइसेस बोलते हैं। कंप्यूटर को डिजिटल डिवाइसेस क्यों बोलते हैं, ठीक, कंप्यूटर को डिजिटल डिवाइसेस क्यों कहा जाता है। कंप्यूटर को डिजिटल डिवाइसेस, देखो डिजिटल डिवाइसेस जो है वो आजकल बहुत सुनने में आता है। डिजिटल फोन हो गया, डिजिटल मोबाइल हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया, डिजिटल वॉच है, डिजिटल थर्मामीटर है, बहुत सारे आजकल हर एक चीज जो है वो आजकल जितने भी मार्केट में चीजें आ रही हैं वो मैक्सिमम डिजिटल ही आ रही हैं। देखो एक्चुअली जो डिवाइसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डिजिटल डिवाइसेस और एनालॉग डिवाइसेस। इसके पहले आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले जो है वो एनालॉग डिवाइसेस चलते हैं, वो एनालॉग डिवाइसेस यूज होते थे। तो अब देखो ये एनालॉग डिवाइसेस में बहुत सारी उसकी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। हालांकि आज भी हम एनालॉग डिवाइसेस बहुत सारे यूज करते हैं लेकिन उसमें लिमिटेशंस है। लेकिन जो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं ये इन कंपैरिजन टू एनालॉग डिवाइसेस ये काफी स्मार्ट होते हैं। डिजिटल डिवाइसेस जो है वो काफी अच्छे होते हैं, चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम करते हैं और पोर्टेबल होते हैं, ठीक है, हाई स्पीड, हाई परफॉर्मेंस। तो ये सारी फंक्शनलिटीज जो है वो डिजिटल जो डिवाइसेस उनकी होती हैं। तो इस वजह से जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो ज्यादा पॉपुलर है मार्केट के अंदर, ठीक है, और वो ज्यादा यूज होता है। तो कंप्यूटर भी क्या है, एक तरह का डिजिटल डिवाइस है, ठीक है। जैसे अदर डिजिटल डिवाइसेस होते हैं तो तरीके से कंप्यूटर भी क्या है, एक डिजिटल डिवाइस है। तो
ये सारे इसकी फंक्शनलिटीज जो है वो यहाँ पे दी हुई हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो दिया है फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। अब देखो यहाँ पे ये एक ब्लॉक डायग्राम, इसको हम ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं कंप्यूटर का। और इसमें देखो ये बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में देखो इनपुट डिवाइस दिखाई दे रहा है, इसके बाद राइट साइड में आउटपुट डिवाइस है, और ये आपका जो मेन जो इसका जो पार्ट है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। अब इसमें भी ये देखो फर्दर और भी कंपोनेंट्स हैं। इसमें देखो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट दिया है, कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, मेमोरी यूनिट है। तो एक्चुअली ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे मेंशन हुआ है, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी एक साथ वर्क करते हैं। और वर्क करने के बाद यूजर जो भी इनपुट देगा, कंप्यूटर क्या करेगा, जो इसका जो सीपीयू वाला हिस्सा है उसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट को ये जनरेट करेगा। तो इस प्रक्रिया में ये जितने भी इसके जो पार्ट्स हैं वो एक साथ वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। तो उस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें ये सभी कंपोनेंट्स या ये सभी पार्ट्स हों, उनको हम बोलेंगे कंप्यूटर। अब जैसे देखो फैन है, तो फैन जो है क्या है, फैन भी आपका क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन उसको हम कंप्यूटर नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें न तो मेमोरी होता है, न तो उसमें कोई प्रोसेसर लगा है, न तो उसमें कोई मदरबोर्ड लगा हुआ है, हाँ, न तो कोई उसमें मेमोरी है। तो इस वजह से वो क्या है, फैन आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है लेकिन वो कंप्यूटर नहीं है, ठीक। तो कहने का मतलब कि वे सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स हों, उनको हम बोलेंगे कंप्यूटर, ठीक। तो इसको हम वन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस डायग्राम को जो है वो वॉन न्यूमैन ने इसको प्रपोज किया था, ओके। अब इसके बाद देखो इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स दिया हुआ है। Input unit, a device through which data and programs from the outside world enter the computer system. देखो इनपुट यूनिट क्या होता है, इनपुट यूनिट एक तरह का डिवाइस है जिसके जरिए हम कंप्यूटर को जो डेटा है या जो प्रोग्राम है उसको हम प्रोवाइड करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से। अब इनपुट यूनिट्स जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन से इनपुट यूनिट होते हैं। इसके बाद देखो आउटपुट यूनिट है, ए डिवाइस थ्रू विच रिजल्ट्स स्टोर्ड in the computer memory are made available outside the computer system. तो आउटपुट यूनिट वो यूनिट होता है जिसके जरिए जो हमारा जो रिजल्ट है या जो हमारा प्रोसेस डेटा है उसको हम डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है या जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोसेस डेटा, इसको हम कंप्यूटर स्क्रीन पे भी यानी मॉनिटर पे भी हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं, और जो आपका जो प्रिंटर है वहाँ पे भी हम इसको डिस्प्ले करा सकते हैं हार्ड कॉपी में, ठीक। तो ये आपके दो यूनिट्स होते हैं, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। अब इसके बाद देखो इनपुट डिवाइसेस, यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, इतने सारे इनपुट डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं। अब देखो कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस कैन सेंड डेटा और इंफॉर्मेशन टू ए कंप्यूटर और अनदर डिवाइस। अब देखो इसमें कीबोर्ड है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या होता है, माउस, स्कैनर को भी हम लोग जानते हैं। स्कैनर ऑप्टिकली रीड्स द डॉक्यूमेंट, फाइल और इमेज एंड देन चेंजेस इट इनटू डिजिटल सिग्नल एंड सेंड्स टू द कंप्यूटर। स्कैनर क्या करता है कि जो आपका जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, या जो इमेज है जिसको कि आप स्कैन कर रहे हो, उसको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में वो कंप्यूटर में इसको भेजता है। OMR सीट होती है, जनरली हम लोग यूज करते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इसमें OMR जो सीट होती है वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। इसको कहा जाता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, और रीडर इज यूज्ड टू रीड मार्क्स ऑन अ डॉक्यूमेंट एंड सेंड देम टू कंप्यूटर, ठीक है। इसके अलावा OCR होता है। OCR stands for Optical Character Recognition, is an input device which reads printed text and sends that to computer. तो OCR जो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं। MICR को जनरली बैंक वगैरह में यूज किया जाता है। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। एक्चुअली जो चेक होता है बैंक में, तो चेक में उसका जो चेक नंबर लिखा होता है, तो उसके लिए वो एक स्पेशल हम इंक यूज करते हैं, और उस इंक को रीड करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जिस इनपुट डिवाइस को हम यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR। इसी तरीके से माइक्रोफोन जो होता है, ये आपका इनपुट डिवाइस है। इट रिसीव्स ऑडियो जनरेटेड बाय सम इनपुट सोर्स एंड सेंड्स
द सेम टू ए कंप्यूटर। इसके अलावा वेब कैम हम लोग यूज़ करते हैं, वेब कैमरा, ठीक है, इमेज को कैप्चर करने के लिए, तो वो आपका इनपुट डिवाइस है। ग्राफिक्स टैबलेट्स होते हैं, ये इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ट्रैक बॉल्स है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। एंड अपसाइड डाउन माउस encased within the socket is a cursor control devices। तो ट्रैक बॉल्स एक्चुअली आप लोगों ने पता नहीं देखा होगा कि नहीं। ट्रैक बॉल एक्चुअली क्या होता है, ये पहले आज से 10 साल पहले जो माउस आते थे तो उसमें नीचे की तरफ एक बड़ा सा बॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता था, ठीक है, तो जो कि ऐसे ऐसे रोटेट होता था पैड के ऊपर, तो उसी को हम लोग बोलते थे ट्रैक बॉल्स। इस तरीके से बारकोड रीडर होता है। बारकोड रीडर भी आपका इनपुट डिवाइस है। इट इज यूज्ड टू रीड द बारकोड ऑफ वेरियस आइटम्स एंड फीड द सेम टू कंप्यूटर। देखो बारकोड रीडर जो है, आप लोगों ने इसको देखा होगा। ये बारकोड रीडर एक्चुअली जब हम लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं और जहाँ पे हम सामान खरीदने के बाद जब बिलिंग कराने जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक हैंडहेल्ड डिवाइसेस लगा होता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर एक्चुअली क्या होता है कि जो जो बार्स होते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स के ऊपर जो बार्स होते हैं तो उसमें पूरी कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन होता है। तो उसी को रीड करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं बारकोड रीडर, ठीक है। इसके अलावा गेम पैड होता है, जॉयस्टिक है, तो ये सारे अलग अलग जो डिवाइसेस हैं इनको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं जिसको कि हम एज ए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस यूज करते हैं, ओके।